हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली इतनी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं ऑन वायलेंटली इन लव मेल लीड्स कि इतनी समझ आ जाती है कि एंड में ये वायलेंटली इन लव मेल लीड जो है ये निकल जाएगा पतली गली से, और या ये अमर हो जाएगा या ये ग्लोरीफाई हो जाएगा, लेकिन लड़की को इससे प्यार ज़रूर हो जाएगा. You know, why now today I can sit here and agree to most of the things, but हाँ. a year back, so we shot Kaisi Teri Khudgarzi last year, and we wrapped it last year December. So we're talking about a project that I did a year Right. ago, Right. when I had little knowledge to what scripts I should be choosing. I ठीक knew है. the kind of themes I would ठीक है. want to do, हाँ. but I had little knowledge, and मेरे लिए I knew that this is not an art that we are producing. Yeah. I will not disagree to it, or Right. I will not denote it in any way. हाँ. I knew what I'm stepping into, but I knew the repercussions of the script that this is going होगा. to give me, because मगर it was दूसरे I would never hold it against you for signing कैसी तेरी खुदगर्जी, because एक तो ये है कि मेरे ख्याल है कि ये एक it became landing ground for you, so why not? Yeah, आपने तो नहीं लिखा. there's no point, like, you know, I was thinking for the past 6-7 months, everybody wanted to talk about this, and I was thinking, why did I sign this? And then I thought, I knew what it's going to get me into, the good and the bad. Yeah. And I'm always, and wherever I go, I'm going to own this project, because no matter what, I signed this with all my consent. Yeah. Nobody forced me to do this. Yeah. I knew the repercussions it's going to get, the good, the bad, the views, because I knew it's... Did you know कि views इतने आएंगे? I had a feeling when I was reading this script, because this gut feeling, and also when you... Mostly क्या होता है जब आपका setup ऐसा होता है ना, it's Ahmed Bhatti project. He really is somebody who looks into his script. Pace बड़ी अच्छी थी उनके ड्रामे की. Yeah, मैं हमेशा ये देखती हूँ, शुरू दिन से मुझे स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता था, मैं ये देखती थी डायरेक्टर कौन है, मैं उनका काम पहले देखती थी, मैं ये देखती थी उनको कनेक्ट करना आता है, स्टोरी जोड़ना आता है, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव connecting them in my mind. So I know कि डायरेक्टर अच्छा होना इतना important है, you can give the best script, but अगर उससे कहानी जोड़नी नहीं आई तो वो स्क्रिप्ट अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. तो my 60% of the reason to sign this project was Ahmed Bhatti Saab, because I think he was one of the best directors we have in our country. Radhen Shah bhi progressive stories and Radhen Shah, the writer, I looked up to him, because हमारे लिए ये we Google everything. Of course. So I Googled him, and he has written some really nice scripts, and I got an offer for one of his previous scripts too that went on to Hum TV. So I had that offer too, और वो भी अच्छी स्क्रिप्ट थी, वो मेरे schedule की वजह से, परदेश की वजह से मैं नहीं कर पाई, but I knew he's a good writer too. So for a fact I knew that maybe पहले 8 episode ऐसे ही जा रहे हैं, but I had a gut feeling that he might mold it well, execute it well. ठीक है. Was it an easy character to do? आसान था महक करना? महक was a character that was far inches away to who I am as a person. हाँ. मेरे लिए महक जितना मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कोई अभी तक जो मैंने किया है वो था. इसलिए बाजार एक सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन अगर आप नहीं है वो आप नहीं है, वो 10-10 के गज के दुपट्टे आप नहीं लेते, आपने वो दुपट्टे सिर्फ लेने नहीं है, आपने फील करना है कि आप लेते हैं. आप वैसे बात नहीं करते, आप इतने सहमे हुए हर वक्त, आपका तलफ़ुज़ बोलने का, आपकी पेस and all of that. And Bhatti bhai made sure that I look like Meg, I feel like Meg. I remember going on the set the first day and wearing my jeans and khula kurta and like sneakers, and he's like, एक तो तुमने अब चप्पल पहननी है, एक तो तुमने ऐसे बैठना है, एक तो just try adding some blush, makeup that I run away from. You have to have these लंबे lock hair and all of that. तो वो उन्होंने कहा ये करना है अब. तो आई रिमेम्बर पहले 2-3 दिन तो वो सब बेचारे सेट पे मेरे दुपट्टे ही संभाल रहे होते थे, बिकॉज दुपट्टे कभी यहाँ से उतर रहे हैं, कभी यहाँ से गिर रहे हैं, और सब बेचारों को मैंने बड़ा टफ टाइम दिया दुपट्टे में. मेरा मेकअप आर्टिस्ट नुमान, उस बेचारे ने दुपट्टे संभाले मेरे सारे. मैं कहता था यार मैं इससे अच्छा दुपट्टा ले सकता हूँ, बट हाँ, इट वाज लाइक महक का जो एक गेटअप था, एक स्टाइल था, या एक पर्सनालिटी थी, उसमें आपने कुछ अपना आप डाला या एग्जैक्टली वही किया जो डायरेक्टर ने कहा? नहीं, आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से दैट महक वाज समथिंग जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, 1 इंच भी नहीं हूँ. ठीक है. और महक के जो कपड़े थे, महक का जो सब कुछ था, वो
सब सब कुछ प्रोडक्शन हाउस ने प्रोडक्शन से किया आ रहा था. था. हाँ, I took help from Elan to get some outfits, 3-4 that you see जब वो हम उस वाले जाते हैं. हाँ. So I got some Elan outfits because I was like, let's add a bit of that Yeah. elegance in it too. हाँ. जब हम उस घर में जाते हैं. But उसके बाद the production house is so good that they're very keen on doing the wardrobe themselves, everything themselves. तो वो सब उन्होंने किया था. But महक बनाने का पूरा credit मेरे डायरेक्टर को जाता है. I would not have been this poised that I hope I look like. No, you did. Absolutely, so I you feel did. like वो बहुत एक वो proper लड़की थी जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ. So did you feel challenging था महक को करना? मतलब कहने का ये कि as a performer, as an actor, was there enough meat on the character? या आपको लगा कि ये एक बहुत बस प्यारी और मासूम और भोली और डरी भी होनी चाहिए और ये ऐसे रहना है मुझे बस? So I didn't have enough scenes to perform, I feel. हाँ. And by perform, I feel like अगर आप पिछला मेरा काम देखें परदेस, तो परदेस में there were a lot of lines, a lot of trauma that I had to process with while saying those lines because परदेस was not an easy script. बिल्कुल. Mehak was, on the other hand side, a script that was very basic. Like there was more to do with the eyes and just emotions rather than speaking what I could. और मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है because मुझे वो हाई पिच वाले सीन्स वो करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे बहुत मज़ा आता है. अच्छा लगता है? मुझे मज़ा आता है. अच्छा, उन सीन्स में. मेरे लिए सबसे एग्जॉस्टिंग काम वो होता है जब मैंने सिर्फ स्माइल करनी होती है आपको देख के. या मैंने वो भाई जो सब कहते हैं ना जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट एज एन एक्टर, आंखों से सारी बातें करनी होती हैं. तो महक वो था और वो बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है. सीन्स को लेके कौन सा सीन चैलेंजिंग था? So the scene that you see with Numan Ijaz, हाँ, आखिरी एपिसोड वाला? आखिरी एपिसोड में नूमी भाई के साथ मैं जब सीन करती थी ना, I used to be like, no, you're giving me a monologue with Numan Ijaz, and what he has to do, just look into your eyes and I'm gone. That was it. तो नूमी भाई के साथ मैंने जब सीन किया ना, it's him who got that scene done from me. He's like ऐसे करो. और सुना बड़े हेल्पफुल हैं वो. वेरी हेल्पफुल. व्हाट अ मैन. और तो वो उनके साथ वो किया. तो मुझे जब भी नूमी भाई के साथ मैं सीन्स करती थी ना, वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए because I used to be very scared initially. And for an actor, if you're scared and then go on a set, it shows on intimidating थे दूर से. If you don't know Numan Ijaz, he will be very intimidating. But when you get to know him, he's the most chillest, coolest person. But Danish के साथ मेरे लिए था because you know I mean अफान थे परदेस में और फिर दानिश थे completely different people. Completely different. And with Afan तो it was like Afan and me went on being great friends. और तो वो इतना आसान हो गया. Buddies. तो इतना आसान हो गया कि हमें लगता था, हमने रमजान में शूट किया था और हमें लगता था बस हम तो करते आ रहे हैं. And if I may, he calls you Dure Fishy. Yes. So वो तो आसान. But दानिश के साथ ये था, he's very serious about his work. So he would want to do lines before and everything, and I was like, dude, I have to do this. तो मैं बैठती थी, हम करते थे. But वो भी बहुत comfortable कर देते हैं अपने co-star को. तो I think दानिश के साथ भी मेरा बहुत काम था, जो कि हमने एक ही स्पेल में करना था. तो वो आपको टाइम नहीं मिलता 1-2 दिन का सोचने का या something back to back every day you're working with him. So I think the scenes with Danish and Numan Ijaz was the most difficult ones. Yeah. तो दानिश के साथ which scenes were? हमने तो उसकी बहुत बात की. Candlelight. अच्छा शुक्र है वो candlelight वाला dinner नहीं, candlelight वाली वो जो रात होती है, तूफानी रात. वो हमने तब कर लिया था जब आइस ब्रेक शेक हो गई थी. वरना मोस्टली क्या होता है हमारे ड्रामों में, पहले दिन ऐसे सीन्स रख लेते हैं. बट भट्टी भाई इज सो इंटेलिजेंट. भट्टी भाई स्टार्टेड अस ऑफ विद वो वाले सीन जिसमें मेरी झिझक शो होनी थी. तो वो बड़ी नेचुरली शो ही बिकॉज मैं झिझक रही थी. तो वो उनको पता था कि मुझे एक्टिंग कितनी आती है, तो उन्होंने उस हिसाब से फिर वो सीन्स प्लान किए थे. बट आई रिमेम्बर वो वाला सीन भी जब हम कर रहे थे ना, तो हम दोनों की द कैंडल वाला हम दोनों की हमने कहा एक भी हंसेगा ना. एंड वी वर जस्ट इन लाफिंग फिट्स because we couldn't fathom a girl who's so like proper and everything going into a candle knowing what she's going for and just walking inside. और फिर भट्टी भाई इज अ परफेक्शनिस्ट. तो वो 20 शॉट्स लेंगे. तो हम एक शॉट से नहीं हम करेंगे, वो हर एंगल से शॉट लेंगे. वो टॉप शॉट भी लेंगे, वो साइड शॉट भी लेंगे. और फिर लाइट बंद हुई है, बाकी मोमबत्तियों में है हम,
फेक बारिश हो रही है पीछे हाँ। तो वो एक अच्छा सेट पे माहौल बना होता है बट ओ माय गॉड दैट वाज वो हमने पूरे दिन में वही एक सीन किया था वो भट्टी भाई ने ऐसे प्लान किया होता इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू शूट बिकॉज लाइट्स एंड एवरीथिंग एंगल्स तो वो हमने एक दिन में वो किया था और हम बड़े एक्साइटेड थे और भट्टी भाई सो पर्टिकुलर भट्टी भाई ने कहा यही कलर पहने मैंने कहा भट्टी भाई क्या रेड था ना the pinks the tones she's like that glow and he thinks so much जब मैं स्क्रीन पे देखा यार the combination that really made sense to me because at the end of the day it's a drama we're living in you have the liberty to do some stuff because it's a dream it's a fantasy that you're seeing वो आपको दिखानी होती है तो वो जब मैंने देखा मैंने कहा वाह भट्टी भाई गुड I liked it, but I मैं तो हसन को कहा मैं कहा वो जा रही है मोमबत्ती लेके उसका क्या मतलब है नहीं आप you reading too much into it मैंने कहा अच्छा you know Hassan when I am there Hassan would be like no Hassan would not think that way हाँ नहीं ऐसा नहीं ये महक नहीं कर सकती मैं कहा महक कर रही है लेकिन ये यही कर रही है but it was a scene that was talked about a lot